Assalamu alaikum dear students. Now in this lecture my topic is the relationship between electric current and drift velocity. In my previous lecture I have given you a concept of drift velocity and electric mobility of electron. Now we will move ahead and find out the relationship between electric current and the drift velocity. Although it is a very small question, but we need to actually derive this relationship because it is in our syllabus class 12th. So we need to do it. Okay. So dear students, let me show you how we will find out the relationship between current and the drift velocity. Now let us take this is a conductor once again. This is a conductor. Okay. For example, this is a conductor like copper wire, okay, aluminum wire, like that. But here I have actually put it in the zoomed way so that you will try to understand it. So अब देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैंने बताया बहुत सारे एटम्स के बना होता है और एटम में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो क्या होता है कि ये एटम को अपनी प्रॉपर्टी जैसी नहीं लग रही है, बिकॉज ये एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर रहे हैं, फिर दूसरे से तीसरे पे जंप कर रहे हैं, थ्रू आउट द लेट्स ये मूव कर रहे हैं. So इसका मतलब है एज इफ इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नो एटम देयर इन द कंडक्टर. ओके, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे विल मूव थ्रू आउट द लेट्स ऑफ दिस मटेरियल. ओके, नाउ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, अगर इसमें एक मैं बैटरी दूंगा लाइक दिस, कोई बैटरी, मतलब क्यों, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल फील्ड सेटअप करना है. मैंने बैटरी दी, सपोज दिस इज बैटरी हेयर, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके पास थर्मल मोशन होती है, लेकिन वो रैंडम होती है, दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ जाएगा उसके ऊपर. तो जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्सेलरेट करेगा, और जब वो एक्सेलरेट करेगा उसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी towards the positive terminal of the battery, and that velocity is called the drift velocity as discussed in the previous lecture. Now it will constitute current. Okay, that current जैसे कि आपको पता है that will go from positive towards the negative. So इस ये constitute करेगा current through this, and that current is given by I. और by the way, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं उनमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, that will be towards the positive terminal of the battery. That's Vd. Like this. So now what is the relationship between the two? Constitute current भी कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, दोनों को एक मोशन के साथ कनेक्शन है. करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो इज हैविंग अ रिलेशनशिप with the motion of this the charge. So therefore there must be some relationship between the two. So that relationship, we will start from the basic, from class 6th. You might be knowing this. I is equal to charge, rate of charge, okay, charge per unit time, like this. I is equal to Q by T. Now my final goal is to find out the relationship. I will somehow include here drift velocity and get the answer done. So it's say equation number 1, and I will consider the length of this conductor is L, my conductor length L, and also consider the area of cross section for my conductor is A. Area of cross section A है और length of the conductor is A. So for example, मैं example के तौर पर, for example let us assume क्या, हम assume करेंगे that small n is number of electrons, E apostrophe S means here electrons, the number of electrons per unit volume. याद रखिए, per unit volume means 1 meter cube. okay, unit volume वही होता है. So volume का unit है ना क्यूब मीटर, so per meter cube, per unit volume. Every material has its own this number density. okay, this is called number density, number of जैसे density बोलते हैं mass per unit volume. Similarly electrons per unit volume is called the electron density. So this electron density is having a particular value for a particular substance. ये किसी को नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं वैसे ये भी नहीं मिलते हैं. ठीक है. सो जैसे कॉपर का अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 8.5 10 to the power 8 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने होते हैं कॉपर में. सो ये जो है ये एक पर्टिकुलर चीज़ होता है. सो दिस इज, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना कॉपर बोला ना कोई और चीज़ बोला, मैंने जनरली एक कंडक्टर लिया. सो देयरफॉर ए जनरल नेम n is the number of electrons per unit volume. okay, so then what we'll do, so ये हमारा जो है, ये अगर इसका वॉल्यूम में देखूंगा, जो हमने कंडक्टर लिया, इसका वॉल्यूम जो आ रहा है, देखिए वॉल्यूम क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स लेंथ, हमारे कंडक्टर का वॉल्यूम जो मैंने कंडक्टर लिया, बिकॉज उसकी लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो उसका वॉल्यूम AL बनता है ना, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, सो मीटर क्यूब है. सो ये वॉल्यूम हमारे कंडक्टर का बन रहा है. सो देयरफॉर हमारे कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आप, बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो तो n है, बट हमारा तो वॉल्यूम AL है. सो देयरफॉर हमारे कंडक्टर में कितने हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन आवर कंडक्टर, ओके, इन गिवन कंडक्टर, जो कंडक्टर इसका वॉल्यूम AL है, इन गिवन कंडक्टर, ओके, जो है कंडक्टर का जो गिवन वॉल्यूम वो कितना होगा हमें कंडक्टर का, सो वो होगा बराबर, देखिए कितना, एक तो n है, ये यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन जो पूरा वॉल्यूम लोगे आपने कंडक्टर का, सो NaL, ओके, गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया हमारे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, NaL, ओके। ईच इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एलिमेंट्री चार्ज, हर किसी इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है, जो कि हम एलिमेंट्री चार्ज मानते हैं, दैट्स डिनोटेड बाय E फॉर एलिमेंट्री हियर, सो वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम, बट E से हम जनरली डिनोट करते हैं। देयरफॉर चार्ज कितना होगा बताइए, फ्री चार्ज कितना होगा ना, हमें अब पता चला फ्री चार्ज, ये चार्ज कितना है हमारे कंडक्टर में, देयरफॉर चार्ज ऑफ द कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टर है कितना है बताइए, वो ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनको मल्टीप्लाइड बाय जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये हमारा चार्ज आ गया। सो पता चला ये क्यों है, दिस क्यों, दैट मीन्स सिंपली क्यों है ये, दिस क्यों इज इक्वल टू NaLe, लाइक दिस, पता चला क्यों, वेरी गुड। सो एक तो हमें क्यों का पता चला, अब लेट अस गो हियर टाइम, दिस टाइम इज जनरल, सो मैं ना इसको रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेट करूंगा, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। सो मैं उसके साथ इसको ये, यू नो वन मोर थिंग, बेसिक क्लास में आपको पता होगा वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके, ये इसके बराबर होते हैं, ओके, गॉट इट। सो नाउ यहाँ पर मैं टाइम जो लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ओके, याद रखना। अगर मैं इसको स्पेशल केस बनाऊँ ना, अगर मैं इसको स्पेशल केस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लूँ, ये वेलोसिटी, और यू नो हमारे कंडक्टर की लेंथ लूँ, स्पेशल टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दिस इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाउ इज इक्वल टू L/T, देखो सिंपल है ना। सो दोनों को, एक क्यों को यहाँ पर पता चला, क्यों चार्ज इसके बराबर है और हमारा रिलैक्सेशन टाइम इसके बराबर है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आए, बिकॉज मेन इक्वेशन जो हमारी थी ना, वो जो आप बिल्कुल बेसिक क्लास से पढ़ते हैं, I = Q/T, now we got this Q, we got this T, make substitution, okay, so we will substitute this Q and T, tau जो है वहाँ पर T जो है, I'm sorry, मैं यहाँ पर T लिखता हूँ, T यहाँ पर मैं T लिखता हूँ, बट देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इज लेंथ, बिकॉज ये हमारी सब्जेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो नाउ मैं यहाँ पर सबस्टिट्यूट करूँगा, सबस्टिट्यूशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए मैं रब कर रहा हूँ, आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन। सो नाउ ऑन सबस्टिट्यूशन मैं I इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूँगा NaLe, दिस इज द चार्ज इन आवर कंडक्टर, एंड हियर इट्स L डिवाइड बाई Vd, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। This L and L will get cancelled out, so you left with NaEVd, NeAVd. This is the required expression which relates current with the drift velocity. Look here, drift velocity, this is current, this is the relationship, I is equal to NaEVd, okay, yeah, or you can rearrange it so that remember it like this, I is equal to NeAVd. There are so many na authors, they are writing it in their own ways, so आप ऐसे जैसे न्यू बनता है कुछ याद रखो किसी तरीके से, this is the relationship, okay, so you got this relationship, this is the relationship between current and the drift velocity. Now I will make you understand what is this current, is this a scalar quantity or vector quantity, okay, let me tell you, this current is a scalar quantity, okay, I is scalar quantity, this I is scalar quantity, it is a scalar quantity, fine. Like for example, I will make you understand what scalar I mean here. See, suppose we have two currents like this, they are coming towards this, a 2 ampere current, here another 2 ampere current, here we have a 4 ampere current, fine, because ये जब आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, तो यहाँ 2 एम्पियर करंट आ रही है, बिकॉज चार्ज पर यूनिट टाइम ही है, एक्चुअली चार्ज ही है पर यूनिट टाइम, सो यहाँ से आ रहे हैं तो 2 एम्पियर का करंट, तो ये बन गया 4। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम यहाँ एक पैरेललोग्राम डालते, याद होगा ना, 11th में पढ़ा होगा, एक पैरेललोग्राम डालेंगे एंड देन वी वुड हैव गॉट द रिजल्टेड लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इट विल नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ, ओके, सो ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, सो ये क्या है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वन मोर थिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ,
पता चला आपको, अगर कोई आपको बताएगा दैट वाई करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, पता ये मसला ये है कि आप बताना बिकॉज ये ओबे नहीं कर रही है वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये ओबे नहीं कर रहे हैं वेक्टर एडिशन, देयरफॉर इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। लाइक मैंने आपको एक सर्किटरी पे दिखाया, मैं डिटेल में आगे दिखाऊंगा, फिलहाल तो इतना बता रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग आपको बताना कि किसी वायर में जब आप सर्किटरी में देख रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज आपने एक सर्किटरी डाल दी, सो करंट विल गो लाइक दिस, देखिए यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, तो आप उसको बताना, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एज इफ इट अपीयर्स टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी, बट ये है ना जो वेव गाइड आपका, मतलब आई मीन कि जो आपकी कनेक्शंस है ना, वो ये जो है ये आप गाइड करा रहे हो उसको कहाँ से जाना है, मतलब मैं कंसेप्चुअली बोल रहा हूँ, ये आप गाइड करो। अगर आप सर्किटरी की शेप चेंज करोगे तो ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो देयरफॉर इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया मैथमेटिकली, बिकॉज इट्स नॉट ओबेइंग द वेक्टर एडिशन, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये आप याद रखना आज के बाद। नाउ अब यहाँ पर हम आपको कुछ और बताने जा रहे हैं। अब फर्दर क्या है, अब हमें ये भी करंट भी पता चला, हमने फील्ड सेटअप किया, अब ये है कि क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर। पहले तो नहीं थी, पहले रैंडम मोशन थी इसके पास, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी विच इज अवेलेबल विद अस एट रूम टेम्परेचर, उसमें वो रैंडम थी, सो नेट करंट 0 आ रही थी। फिर आपने बैटरी लगाई, अचानक करंट चलने लगी, ठीक है इसमें, तो ये कैसे आ गई? सो इसके लिए हमारे पास जॉर्ज सिमन ओम है, उसने हमारे पास एक लॉ दिया है, तो वो लॉ जो है वो रिलेट करा रहा है इस आई को, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाया, यहाँ नेगेटिव मैंने दिखाया, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होती है उसकी वजह से वो करंट मूव कर रही है। तो फर्दर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ। सो लेट अस एक्चुअली ट्राई टू explain now what is Ohm's law. The Ohm's law is which gives us the relationship between this current, okay, and the potential difference which we have set up across the ends of conductor. And also yes, that's very important because जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थ्रू दिस कंडक्टर, वहाँ लेट्स पे उसके कोलिजन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेट साइड्स के साथ, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। फाइन, उसका नाम फिजिक्स में रेजिस्टेंस है। तो वो जो स्कैटरिंग आती है, वो जो रेजिस्टेंस आती है, उसके साथ भी इसकी रिलेशनशिप है। लेट अस ट्राई टू एक्चुअली गिव अ credit to that Ohm which have given us that kind of the relationship and try to understand what he has actually given in the form of the law, वो हम इसमें explain करेंगे। Fine, so I will here make understand you what's Ohm's law. Now Ohm's law here, it's Ohm's law. Now what is Ohm's law? Which actually relates current with the, okay, it's a statement, ये एक statement है which relates, ये statement है, statement which relates, ये किसको relate कर रहा है? relates current, electric current I mean, electric current, और किसको मिला रहा है? शाबाश, electric current को मिला रहा है, potential difference को मिला रहा है, voltage बोलिए तो आपको समझ में आ जाएगा, voltage जो आप बोल रहे हो, voltage and resistance, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन फिर करूँगा क्या है। ये जो स्टेटमेंट है इन तीन को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ऐसे में एक रूल निकल के आता है, उस रूल को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। सो दैट्स मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, या अब ओम्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ? फाइन, तो वो है इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, विच रिलेट्स द थ्री क्वांटिटीज, विच क्वांटिटीज? इलेक्ट्रिक करंट, देन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इनको ये रिलेट करा रहा है। वो कैसे रिलेट कर रहा है मैं भी बता रहा हूँ आपको, दैट्स ओम्स लॉ, मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो फिर से मैं एक कंडक्टर लेता हूँ, मैं एक कंडक्टर लेता हूँ लाइक दिस, ये कंडक्टर है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कंडक्टर है, बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो नाउ हियर इट्स से पॉजिटिव नेगेटिव, चलिए मैं पहले से ही आप उस साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ, अब भी पॉजिटिव उसी साइड से ले रहा हूँ। सो नाउ हियर इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट्स अ नेगेटिव टर्मिनल। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊँ, वो आपको याद रखना चाहिए, जो भी हम बैटरी या सेल लगा रहे हैं उसे बैटरी, तो पॉजिटिव टर्मिनल जितना होगा इसका जो ईएमएफ इसका होता है वो पॉजिटिव पे सेटअप होता है, नेगेटिव इज ऑलवेज टेकन एज द जीरो। फाइन, तो आप जीरो लेते हैं, जैसे आप 6 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, दिस इज कंसिडर्ड एज 6 वोल्ट एंड दिस इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्ट, सो 6 माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट की ही आ जाएगी। अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी के भी लगाई यहाँ पर, तो पॉजिटिव माना जाता है 12 वोल्ट हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव माना जाता है 0, सो विल टेक 12 माइनस 0, दैट्स अ 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव एक्चुअली इम्प्रेस्ड अपॉन दिस कंडक्टर। सो वो आपको याद रखना चाहिए, ऑल्दो मैं यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा हूँ लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ठीक है। सो नाउ से मान लीजिए द पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है ओम, बोल रहा है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor is directionally proportional, ये directionally proportional to the current flowing through the conductor, okay। यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी,
ठीक है, करंट फ्लो हो जाएगी लाइक दिस, तो इसमें से आई जा रहे हैं लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है उसने बताया दिस डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितनी आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना जो करंट इस कंडक्टर में जा रहा है वो बढ़ेगी, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ उसने बताया जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो यहाँ कम्स आउट टू ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो दिस आर इज नथिंग बट व्हाट इज दिस आर, दिस इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस आर, रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस, कंडक्टर की, जो हमारे ऑपरेशन में है कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ये कहाँ से आती है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है तो वो जो कोलाइड करता है लेफ्ट साइड्स पे, तो वो कोलिजन जो है उसकी वजह से अपोजिशन आती है उसको, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो पता चला हमें ये जो ओम्स लॉ है डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, ओके। V delta V is equal to I. This relationship between the three physical parameters, okay, कौन कौन सा वाला, potential difference, current and resistance. This statement is called the Ohm's law. इसको बोलते हैं Ohm's law. अब यहाँ से अंडरस्टैंड कीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रब कर सकता हूँ, तो अगर नोट डाउन करना है कीजिए, ओके। So now I will wrap it. Listen to me now. Now we can say this I is equal to this I from this relationship Ohm's law. This I is equal to, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा V divided by R like this. डेल्टा V divided by R. You know I जो है करंट ना जो फ्लो करती है कंडक्टर में, वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। सो इसका क्या मतलब है, यू हैव टू कंट्रोलिंग फैक्टर्स विद यू, यू हैव टू स्विचेस विद यू, ओके। आपके पास दो कंट्रोलिंग फैक्टर है करंट को कंट्रोल करने के लिए, एक है चेंज इन पोटेंशियल, ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है रेजिस्टेंस। कहीं पर अगर आपका मौका है आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हो, कीजिए, करंट को चेंज हो जाएगी। कहीं पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस को वेरी करो, आपकी करंट वेरी हो जाएगी। सो यू हैव दीज टू कंट्रोलिंग फैक्टर्स विद यू। जरा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 0 वोल्ट मानूँ, ठीक है ना, और इसको 6 वोल्ट मानूँ, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट। तो मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसके ऊपर। सो पता है, मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये नहीं है सही। मैं मानता हूँ कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट की लगाई और वहाँ पर 2 एम्पियर की करंट वहाँ पर फ्लो हो गई। अब ना मैं इसको डबल करता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसको डबल कर रहा हूँ, वही 0 वोल्ट रखा है पर 12 वोल्ट बनाई मैंने बैटरी लाइक दिस। तो पता है डबल की मैंने डबल, ये में डबल हो गया, तो पता है हमारी करंट 4 एम्पियर की हो जाएगी, ठीक है। कितनी की, 4 एम्पियर की। गॉट इट। सो मतलब द स्विच इज विद यू, जस्ट प्ले विद इट। लैब में जाओगी तो लैब में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में, फिर आप बहुत अंडरस्टैंड करोगे कि उसने क्या किया था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मेरी 1 ओम की रेजिस्टर थी इसमें ना, 1 ओम की रेजिस्टेंस थी इसमें, ठीक है, 1 ओम की रेजिस्टेंस, 1 ओम की रेजिस्टेंस है, करंट कुछ थी, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर की करंट हो गई। लेकिन अचानक मैंने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी, मैंने 2 ओम की रेजिस्टेंस कर दी, डबल कर दी। ये देखिए रेजिस्टेंस डबल कर दी मैंने। जब रेजिस्टेंस डबल कर दी ना, तो यहाँ करंट को क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यू विल गेट हाफ एम्पियर करंट लाइक दिस, मतलब हाफ हो जाएगी, जो भी हाफ ऑफ आई, ये आधी हो जाएगी, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। सो देखिए एक फैक्टर आपको बढ़ा रहा है, करंट, दूसरा फैक्टर जो है वो घटा रहा है करंट। सो आई मीन यू कैन प्ले विद दिस एंड गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ योर करंट। सो अब आप इस पोजीशन में हैं, आप कुछ कर सकते हो 12th में एज एन एक्सपेरिमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। लैब में जाके देखिए ओम्स लॉ को आप बिल्कुल, ये बहुत ही पुराना मतलब लॉ आया है बहुत ही पहले, देखिए वो जब कर रहे थे उस वक्त, अब हम हाईटेक ज़माने में हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कुछ आप इंटरेस्टिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हमें एक बल्ब बनाना है हमें, तो बल्ब में हमें चाहिए लाइट, हमें हीट नहीं चाहिए। तो मतलब ये सिंपल सा बात है, हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का जो लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, दैट इज I² RT लाइक दिस, दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब आप चाहते हो करंट कम हो जाए, बिकॉज बल्ब में आपको हीट नहीं चाहिए, आपको लाइट चाहिए, फाइन। तो आप क्या करोगे फिर, आप ऐसा कुछ करोगे, समथिंग आपको करंट चाहिए कम, तो करंट कम कैसे होगी, आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे। और हम जानते हैं जो हमारे जो बल्ब्स आते हैं, जैसे 100 ओम का बल्ब है, हम उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं सो दैट उसमें करंट घटेगी, करंट घटने से उसकी हीटिंग इफेक्ट कम आ जाएगा, तो हाई रेजिस्टेंस हम इसीलिए रखते हैं उसका, तो ग्लोइंग पावर हमें ज़्यादा आ जाए, हीटिंग कम आ जाए। तो वैसे आप कर सकते हो। फाइन, आपको अब आयरन बनाना है, तो आपको आयरन बनाना है, कोई और हीटिंग एलिमेंट आपको बनाना है। अगर आपको हीटिंग एलिमेंट बनाना है तो आपको ना ये करंट उसमें से ज़्यादा जानी चाहिए, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास घर में आयरन होते हैं एटसेट्रा, तो उनकी जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 20 ओम 30 ओम के इर्द गिर्द हम रखते हैं। जितना कम रखेंगे उतना उसमें करंट ज़्यादा जाएगी, उतना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो ऐसे में वो डिवाइस जो है वो आपकी हीटिंग इफेक्ट कम आ जाएगा। जस्ट प्ले विद दीज थिंग्स,
तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, यू अंडरस्टूड, पता चला। सो अब देखिए ये आपका ओम्स लॉ आया, I इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे उनमें भी हम करंट कंट्रोल जो कर रहे थे ना रेजिस्टर्स की वजह से ही करते हैं। समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, मतलब ट्रांसफार्मर जिससे हम वोल्टेज स्टेप डाउन करते हैं या कुछ और चीज़ है, आप चाहते हो कि किसी तरीके से आप करंट को कंट्रोल करोगे, तो आपको उस वक्त यही रेजिस्टेंस का ध्यान करना है कि आप रेजिस्टेंस के साथ खेल रहे हो और करंट को कंट्रोल कर रहे हो। इसलिए बहुत सारे डिवाइस में जैसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे, पोटेंशियोमीटर ब्रिज पढ़ोगे, वहाँ पर अपना रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे टाइम रिजल्ट्स नहीं आते हैं अच्छे, वो यही वजह होता है हम ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पर लोग कि हमें रजिस्टर लगाना है, बिकॉज इसका हीटिंग इफेक्ट आता है, उससे रेजिस्टेंस वेरी हो जाती है, तो आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ जाएंगे। तो वहाँ पर आप बच्चों को बहुत ही ख्याल रखना है, क्या करना है हमें, कैसे कहाँ रेजिस्टेंस लगानी है, क्योंकि टू कंट्रोल द करंट, ताकि हीटिंग इफेक्ट्स वहाँ से नहीं आ जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको इसी लॉ से पता चल जाएंगी। अब देखिए, अब ये जो है ना दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ अगर आप एक ध्यान दोगे यहाँ पर, ये जो है ये पोटेंशियल जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दिस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, सो दिस इज सिंपली अ स्केलर फॉर्म। तो जो ओम्स लॉ की ये है ना, ये स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे हो। ठीक है, दिस इज स्केलर फॉर्म बिकॉज एवरी क्वांटिटी, आप जरा देखिए पोटेंशियल भी स्केलर, आई भी स्केलर, आप पढ़ रहे हो स्केलर फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने निकालनी होगी, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई। देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन आर वहीं पर रखिए, आई यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या है, कहीं पर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो अब आप उसको बोलिए, जैसे यूनिट में पढ़ाऊंगा इसका यूनिट ऑफ आर। देखिए जब आप वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो आर जो है, देखिए यूनिट क्या है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वोल्ट है, करंट का एम्पियर है, तो पता चलेगा हमारा यूनिट ऐसा यूनिट बनेगा वोल्ट पर एम्पियर। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम इन ऑनर ऑफ दिस, इस ओम ने बहुत काम किया इसके ऊपर, तो इन ऑनर ऑफ हिम हम इसको ये सिंबल पढ़ने में ओम बोलते हैं, सिंबल ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम ओम बोलते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, इसी तरह से आपको डायमेंशंस बोले जाएंगे। बताइए डायमेंशंस आर के क्या है, हो सकता है आपको पूछे जाएंगे कभी कहीं पर, या 11th में ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं। सो हम वहाँ पर क्या करते हैं, देखिए वोल्ट एम्पियर। ओके, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल, इसलिए नाम इसका पोटेंशियल है। बट दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग दिस पोटेंशियल कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी देयर इन आवर दिस सिलेबस। ओके, सो नाउ इफ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का है ml2t-2 डायमेंशंस। ठीक है बेटा, और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का है एट डिवाइड बाय एम्पियर, दिस इज ओके, दिस करंट का एम्पियर है, देखिए एम्पियर कैंसिल, ये बन जाएगा ml2t-2 t-1, so I'm ये ऊपर आ जाएगा, सो t-3 लाइक दिस। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कहीं पर हमें गलती हो सकती है। सो दिस इज m, दिस इज L2, ये t यहाँ पर है, ऊपर आएगा ये -1 हो जाएगा, सो 2 माइनस इस t-3, दीज आर द डायमेंशंस। हो सकता है कहीं पर पूछा जाएगा आपको। तो फर्दर हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी ओम्स लॉ की, हमने स्केलर फॉर्म पढ़ी थी, और अब हम जा रहे हैं इसकी वेक्टर फॉर्म पे। फाइन, वेक्टर सेंस आई मीन वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ दिस, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ द ओम्स लॉ, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वन कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले कि हम जाएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे, हमें कुछ और पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड द करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी हम पढ़ेंगे और बताएंगे आपको वो क्या है, फिर उसके बाद हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, यानी पहले हम वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ करंट लेंगे, फिर वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ ओम्स लॉ लेंगे। सो मुझे लगता है कि इस क्लास में ये बहुत इनफ है। Let us discuss that thing in the next class. I think we have done enough in this class. Let us stop this class here, and I hope that you have understood what I have taught you and enjoyed it as well. So in next class we will discuss the vector equivalent of current and vector equivalent of the Ohm's law. Okay, thank you very much, dear students.